नाम को महिमा देते हुए तालियों के साथ। कितने जन खुश हैं प्रभु की हुजूरी में। आज का दिन यहोवा ने आपके लिए ठहरा दिया है, आपको ऊंचा करने के लिए। तो सब जन बैठ जाओ, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करो, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को, जिस तरह आपने वर्शिप करी, आत्मा में घोषणाओं को किया, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है। अभी ये समय है आत्मा में रहते हुए इन टेस्टिमनीज को सुनने का, क्योंकि यही गवाहियां हैं और यही परमेश्वर के वचन है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको चेंज करते हैं। पूरे ध्यान से इन गवाहियों को सुने। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदीप कौर है। कहाँ रहने वाले हैं? जिला लुधियाना, पिंड रसूलपुर जंडी। ओके, आप खुद क्या काम करते हैं? मैं पेशेंट केयर टेकर करती हूँ। ओके, आप अपनी गवाही बताएं कि क्या हुआ था 1.5-2 साल पहले आपके साथ, क्या इंसिडेंट हुआ था? हाँ जी, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜਾ ਐਡੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਥ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੋਚ ਦੂੰ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। रो के फिर मैं चुप कर जाती थी। आपकी कंडीशन भी जैसे मेंटली अपसेट के लोग होते वैसी हो गई थी? मैं वैसे ही हो गई सी। घर का सामान तोड़-फोड़ देते थे, लोगों से, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करते थे? मैं बहुत लड़ती सी अपने घरदियां नाल, मैं बच्चियां नाल, छोटे बच्चे नाल भी लड़ पैंदी सी। तो इस वजह से घर का माहौल कैसा हो गया था? घरे मैनू पागल कहन लग गए। जो पागल कहंदे मैनू गुस्सा आउंदा सी, ते मैं क्या मैं पागल नहीं गी। डॉक्टर भी मैनू जो रोज मेडिसिन दवाउण लग गए, कहंदे दा सिर दर्द करदा, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते थे खाने के लिए? हाँ जी, दवाइयाँ खाई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰ ਸਗੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫਟਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। और ये मेंटली अपसेट के दौरे जो थे, जो अटैक थे, डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे? हाँ जी, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ 3 ਮੰਥ ਘਰੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। तो परमेश्वर ने कैसे आपको इस बीमारी से, इस रोग से, इन स्पिरिट से आजाद करके नया जीवन दिया? ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਥਰਸਡੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ। उस समय आप यहीं चर्च में मौजूद थे? हाँ जी, मैं ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ऑयल मीटिंग ਸੀਗੀ थर्सडे ਨੂੰ। ओके, 27 फरवरी 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब प्रेयर हुई, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। अपने माथे पे हाथ रखें और खुदाबंद का आत्मा आपको छुए। हर तरह के ब्लड के हार्मोन्स की, हर तरह की जो बैलेंस होना चाहिए, जो अनबैलेंस है, जैसे आप अपना दाहिना हाथ अपने माथे पे रख रहे हैं, वो चीजें बैलेंस हो रही हैं और आप हील हो रहे हैं। ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या आपको बॉडी में हो रहा था उस वक्त? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਭਾਰਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। और कोई उसके बाद कोई डिप्रेशन का अटैक नहीं आपके ऊपर, कोई मेंटली अपसेट का अटैक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਆਨੰਦਿਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं
मैं 2025 27 फरवरी तो ही आजाद, आज मैनू साल हो जाना, 1 साल के करीब हो चुका है, 1 साल हो चुका और बिल्कुल मैं फ्री है, बिल्कुल फ्री हाँ, बहुत खुश हाँ। ते मैनू कोई नहीं ऐसा गुस्सा करता, मेरे ते पहला गुस्सा भी करते सी, हुण मैनू कुछ नहीं कोई कहंदा गा, हुण मैनू समझदार भी समझदे। पहला मैनू कमली जी कहन लग गए सी, तो कमली जी हुई रहिंदी आ, पता नहीं इहनू की हो गया, ये तो जॉब नहीं कर सकती। हुण प्रभु ने मैनू बहुत सोहनी जॉब नाल ब्लैस कीता, मैं बहुत आनंदित हाँ, मैं बहुत आनंदित हाँ, मैं खुदा दा थैंक्स करदी हाँ। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन कहें वर्शिप में, यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, बिना तेरे थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर अपने अभिषेक के दौरान आपके बंधनों को तोड़ते हैं। तो आज वो बीमारी का बंधन, वो पागलपन का, वो श्राप, वो बंधन जितने भी आपके जीवन में काम करते हैं, आज वो टूट चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और अब वापिस आ रहे हो अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में हालेलुया। करूंगा स्तुति रूसी में तेरी, छिपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे कुछ भी नहीं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है जी। कहाँ से आए आप? मैं संगरूर से हूँ। ये गवाही आपकी बेटी की है? बेटी की है। क्या नाम है इनका? संजना। आप बताएं क्या गवाही है इनकी? मेरी गवाही ये है जी कि ये पैरालाइज है, दुष्ट आत्मा का अटैक था इन पे। तो मैं संगरूर रहता हूँ और बेटी को पैरालाइज हुआ था, ये दुष्ट आत्माओं आपकी का बेटी अटैक। पिछले 2 महीने से ठीक नहीं थी, अजीब सी घटनाएं उसके साथ बीत रही। जी ब्रदर। क्या होता था उसे पहले? जी इससे पहले तो ये दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था जी, और ये नाराज रहती थी, रोती रहती थी, ये बिस्तर में ही पड़ी रहती थी और हमेशा रोती रहती थी। हमें समझ नहीं पाते थे कि क्या हो गया इसे, और हमने काफ़ी जगह जाने की कोशिश भी की, इनका इलाज कराने की कोशिश की। मैं 2-3 अस्पताल में भी चला गया। और आप बता रहे कि जब ये सो रही होती थी तो अचानक से उठकर रोना शुरू कर देती थी? रोती थी ये ब्रदर, बहुत ज़्यादा रोती थी और इसकी आवाज़ नहीं निकल पाती थी, ये बेड पे रिहा करती थी। तो इसकी लैट्रिन बाथरूम भी आना जाना नहीं हो पाता था, और इसे लेके आना जाना हम ही करते थे, और हमें बहुत दिक्कत होती थी। मैं बोलता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जब उसके बाद इनको पैरालाइज का अटैक हुआ, टोटली बेड पर चले गए, बोल नहीं पाते थे, थलाकर बोलते थे, डॉक्टरों का क्या कहना था उस समय? तो ब्रदर वो कहते थे कि पैरालाइज हो गया इन्हें, और इनका पता नहीं, इनका दवाई करो, कुछ इलाज करना होगा इनका। तो हमने इलाज करवाया तो कोई आराम नहीं था इसका। तो हमें लगता था, फिर ये हम इसे घर वापस लेके आए, कुछ दवाई खिलाई तो असर नहीं किया इसे। तो कुछ इसे खिलाया करते थे, या रोटी या पानी कुछ भी, तो ये मुंह में रखती थी और ये फेंक देती थी, खा नहीं पाती। तो और जो थूक होती है, राल होती है, राल वो मुंह से गलती रहती थी इसके। प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाती थी ब्रदर। बेड पर थे और चलना, खड़े होना कठिन था, चलना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, ये बेड पे रहती थी ब्रदर, और ये जा नहीं पाती थी कहीं पे। आपने इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया? बहुत ब्रदर, कोई फर्क नहीं कोई पड़ा? फर्क नहीं ब्रदर। और क्या आता था फिर मन में अपनी बेटी की ओर देखकर? तो ब्रदर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी का कोई इलाज नहीं हो सकता। जो विश्वास था वो टूट चुका था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मुझे बड़ी परेशानी होती थी और मैं चाहता था कि कोई तो होगा जो मेरी बेटी को चंगाई देगा। यानी कि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी आपकी बेटी की कि आपने उम्मीद छोड़ दी कि बिल्कुल उम्मीद, अब ये कभी नहीं चलेगी, कभी ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं ब्रदर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और मेरे मन में ऐसी बातें आती थी और मैं परेशान होता था, रोता था। मैं खुद ही मैं सोचता था मेरी बेटी का इलाज नहीं हो पाएगा।
और शायद मेरी बेटी दोबारा चल भी नहीं पाएगी। तो मुझे दुख होता था इस बात का और उम्मीद मेरी टूट चुकी थी। तो मेरा फ्रेंड था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ का बताया था और मैं यहाँ पे आया था खामरा चर्च में। तो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो मैंने लोगों की गवाहियाँ सुनी यहाँ पे। तो लोगों की गवाहियाँ सुनी तो लंगड़े चलने लगे और पैरालाइज के बारे में भी बताया। तो मैंने एक विश्वास जगा कि परमेश्वर मेरे बेटी को भी चला सकेगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब इतने लोग, जब बड़ी से बड़ी बीमारियाँ है वो परमेश्वर ठीक कर सकता है, तो ये मेरी बेटी की कोई बड़ी बीमारी नहीं, ये भी बहुत छोटी बीमारी है। तो मैं जब यहाँ पे आया और मैंने एक विश्वास के साथ उस प्रार्थना को, जो पापा ने यहाँ पे प्रार्थना की थी कि अपने पिता अपने फैमिली पे फायर करे, और वो पापा के ओर से मैंने अपने अंदर लिया और रिसीव किया और अपने बेटी के लिए रिसीव किया था। और उसी दिन से मेरी बेटी डिस्कवरी हुई और आज मेरी बेटी 2-2.5 महीने से बिल्कुल चंगी है, खाती है, पीती है, घूमती है, सारी जगह जाती है। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जब यहाँ पे आया मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पीछे कहीं दिखी नहीं। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि सब कुछ यहाँ पे हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ही करने वाला है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर यहीं पे है और मैं प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मम्मी पापा का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये भाई जब चर्च आए, आपने गवाही में सुना, लोगों की गवाहियां सुनी, कहते मैंने सुना, देखा कि लोग हील होते हैं, पैरालाइज के जो लंगड़े हैं वो चल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां लोगों की खत्म हो रही हैं और वो हील हो रहे। तो मेरा विश्वास बढ़ा कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी लाइफ में, मेरी बेटी की लाइफ में काम कर सकता है। विश्वास के साथ खुदा के घर में बने रहे। नवंबर 2025 में ये चर्च में आए। पहले आइए उस प्रार्थना को दे दें। जब ये उस दिन चर्च में बैठे थे तो खुदा के दास ने प्रार्थना की। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा कहता है, और डिक्लेयर करो, घोषणा करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कमांड करो अपने बॉडी के अंग को ये सही से काम करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वर्क प्रॉपरली। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, घुटनों पे, सिर पे, जहां दिक्कत है, सही काम कर यीशु के नाम में। और जैसे इस भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय बेटी कहां थी आपकी? यहीं पे थी, पंडाल में थी। मैं बेटी को साथ में लेके था पंडाल में ही, और मैं पूरा ब्रेथ के साथ यहाँ पे बैठा था और पापा जो प्रार्थना करे थे मेरे बेटी के लिए मैंने रिसीव की। जब प्रार्थना रिसीव की उसी समय आपने अपनी बेटी के लिए, तो क्या हुआ था, क्या बदलाव आए फिर? मेरी बेटी एकदम से ही रोई और एकदम से उसके चेहरे पे एक खुशी आई और मेरे अंदर जो एक खुशी जागी, मुझे लगा कि शायद परमेश्वर ने आज ही और अभी और इसी वक्त मेरे बेटी को चंगा किया है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और उस दिन से, उस प्रार्थना के बाद से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चल पाती है, चलती है, बोलती है, बिल्कुल खाना खाती है, बिल्कुल। चलाइए से। सब लोग अपने हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस को धन्यवाद देते हुए। आप उस बेटी को चलते हुआ देख रहे हैं जिसके बाप ने उसकी हालत को देख के उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कभी नहीं चल पाएगी। इलाज करवाया, ये नहीं इलाज नहीं करवाया, डॉक्टरों के पास भी गए पर कहीं से आराम नहीं मिला। उन्हें लगता था कि ये बड़ी हो जाएगी, इसका क्या होगा, इसकी लाइफ में क्या होगा, ये इन चीजों को देख देख के सोच के रोते रहते थे। पर जब परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा इनकी बेटी को फिर से हील किया है। वो जो चल नहीं पाती चल पाती है, खाना खाती है, बोलती है। आप बताओ अपना, आपका नाम क्या है? संजना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? चौथी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। जीवत परमेश्वर वचन कहता उसने मार खाई है आपकी चंगाई के लिए। हर रोग, हर बीमारी वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है क्योंकि आपके लिए खुदा ने कीमत अदा की है। हर एक बीमारी से आजाद किया है खुदा ने आपको। थैंक्स करें, तारीफ करें। भाई अभी भी लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं जगह आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं तो ब्रदर यही कहना चाहूँगा,
जिन लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था तो सिर्फ लोगों की गवाहियाँ सुनी थी मैंने, पर मुझे ये लगता था कि लोगों की गवाही सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मुझे मज़ा तो जब आएगा जब मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे बेटी के लिए काम करेगा, जब मुझे पता लगेगा कि परमेश्वर है भी क्या नहीं, और सचमुच परमेश्वर यहाँ पे है और मेरे जीवन में काम किया। सभी को हालेलुया, सब जोर से। हालेलुया। नासरी अबदी खुशी देता है तू जिंदगी, तू नासरी अबदी खुशी देता है तू जिंदगी। थैंक यू जीसस। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हो तो परमेश्वर आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। थैंक्स करें, धन्यवाद दें सब जन। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, पूना। ओके, आज से 19 साल पहले आपने गलत संगति में जाकर नशा करना शुरू कर दिया था। यस ब्रदर। ओके, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसा जीवन था आपका उस वक्त? मैं अपने लाइफ के बारे में ऐसे बता सकती हूँ ब्रदर कि मैं शादी से पहले 16 साल पहले मैं नशा करती थी। तो नशा करते करते नशा इतना बढ़ गया कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मेरे नशे का हाथ हो गया। मैं चोरी चोरी भी नशा करती थी। बाद में मैं समझ नहीं पाती थी और टोर भी नशा करने लगी। मैं 2-2, 3-3 बोतल नशा करने लगी। गुटखा खाने लगी, गाय छाप जो रहती तंबाकू वो भी खाने लगी नशे से पहले। एक दिन में 2-2, 3-3 बोतल शराब की, यस 2-3 ब्रदर। पैकेट गुटखा के, तंबाकू का नशा आप हर रोज करते थे। यस। तो नशा करने के लिए फिर पैसा कहाँ से आता था? घर से लेती थी। शादी से पहले मेरे घर में खुद का दारू का दुकान था, उससे भी चोरी कर लेती थी। तो मेरे भाई ये लोग रहते थे, तो नई दारू चोरी करने को जमता था तो पैसे चोरी कर लेती थी मैं। और आपकी छवि जो थी, आपकी इमेज पूरी लोगों में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में सभी तरफ खराब हो चुकी थी। कोई पसंद नहीं करता था आपको। यस ब्रदर। मेरे घर वाले धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ा तो सब मुझे ताने मारते थे, बोलते नशेड़ी है, सब मुझे मतलब गंदा बोलते थे। हमारे घर नहीं आना, हमसे बातें नहीं करना, तेरे कारण हमारे बच्चे की शादी नहीं होगी, तेरे कारण हमको लोग नाम रखेंगे, आप इस गांव में मत आना, तेरे घर वाले क्या पागल है क्या, इस गांव में रखते, इसको निकाल देना चाहिए इस गांव से। तो आपको गांव से निकाल दिया गया था? यस, मुझे गांव से निकाला और मैं पूना में आके रहने लगी। फिर लेकिन मैं नशे से बाहर नहीं आ पा रही थी ब्रदर। मैं बहुत कुछ करके देखी, मैं नशे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि मैंने बहुत जगह इलाज करवाया, फिर भी मैं नशा नहीं छोड़ पा रही थी। और इस चीज का असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ा, मेंटली अपसेट हो चुके थे आप? यस, मैं जब नशा नहीं करती थी तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था ब्रदर। तो मेरा दिमाग में समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं, पूरे हाथ पांव काम नहीं करते थे। और कई बार खाना भी आपके पास खाने के लिए नहीं होता था? खाना नहीं रहता था ब्रदर, अड़ोस पड़ोस को मांगती थी और जब वो नहीं देते थे तो किधर बाहर जाने का इंतजार करती थी, क्योंकि उसके घर से मैं चुरा लूं और अपना पेट भर लूं। मैं चोरी करती थी खाने को और चोरी करके खाती थी। आपका जीवन पूरा पागलों के जैसा हो चुका था उस समय? पागल हो चुकी थी ब्रदर। मैं नहीं समझ पाती थी कि मैं क्या मैं इस नशे से कैसे छुटकारा ले सकती हूँ। उसके बाद में मैं नशा मेरा नहीं छूट रहा था। मेरे घर वाले परिवार वाले बोलने लगे इसकी शादी करवा देते हैं।
शादी करवा देते। मेरी शादी करवाई। शादी करवाने के बाद ब्रदर धीरे धीरे चोरी कर कर के पीती थी घर वाले से, लेकिन मेरे पति को ऐसे ही पता चला तो धीरे धीरे पति बोला ऐसे औरत जात नहीं करती है, मुझे लोग शर्मिंदा करेंगे, पता चलेगी तो औरत नहीं कर सकती है ऐसा। आदमी की बात कुछ अलग रहती है, लेकिन औरत जात करेगी तो लोग मुझे नाम रखेंगे, गांव में समाज में बोलेंगे कि तेरी बहू तेरी बीबी शराब पीती है, ऐसा मत करा कर। फिर भी मैं उनको बोलती थी नहीं करती हूँ। वो अपने काम पे जाते थे तो मैं अपना खुद भी जाती थी, मैं शर्म नहीं करती थी। उस दुकान पे किसी के हाथ के नीचे मंगवा लेती थी कोई भी लड़का इंसान। मैं शराब के लिए कुछ भी करती थी, चोरी कोई भी चीज हो मैं शर्माती थी नहीं। कितना भी बड़ा रहे, मुझसे बुजुर्ग भी रहे, उसको भी मैं पैसे दे के बोलती थी कि मुझे लेके आओ। और जब ये नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, दिमागी हालत खराब हो चुकी थी, तो आपके परिवार वाले आपको हॉस्पिटल में भी लेकर गए थे, डॉक्टर के पास गए आप? मुझे 6 हॉस्पिटल भी दिखाए ब्रदर, लेकिन हॉस्पिटल ने कुछ नहीं किया। मेरा मेडिसिन खाती रही, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जब जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका था, आपको यहाँ के बारे में, अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में, चर्च के बारे में कैसे और कब पता चला था? मेरे को ऐसे ही फिर मुझे घर वाले ने निकाल दिया। पुणे में आने के बाद में मैं अपने, मेरे को जैसे मतलब बाहर के इधर उधर दिखाते थे, जो बाहर के लोग रहते हैं ना, झाड़ू फूक करने वाले की इसको कोई किया तो फिर मेरे मामा के लड़की ने मुझे बोला कि ठीक है मैं एक बात तुझे बोलती, हम तो तुझसे बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तुझे बोलती हूँ कि मैं तुझे प्रभु ये तुझे छुड़ा सकता है, आजाद कर सकता है। आपको मालूम था चर्च के बारे में पहले से भाई? नहीं, मैं प्रभु का नाम नहीं जानती। अच्छा, आपको नहीं मालूम था? आपको पता था इस चीज के बारे में, चर्च के बारे में? ब्रदर मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब में मैं एक खामरा चर्च के बारे में देखा। मैं बोला टेस्टमनी तो अच्छा चल रहा है। हाँ। मैं बोला चलो, हर एक जगह मैं देखा है, इसका सब चीज इलाज करवाया, झाड़ फूक वाले पास गया, कोई फायदा नहीं, कोई इसका ये नहीं हुआ। बहुत तकलीफ से नाइट इसका मैं संभालता था। रात में जो डर पैदा होता था, बहुत अटैक होता था इसके ऊपर, मैं बहुत संभालता था। दिन भर काम करके फिर मैं यूट्यूब के द्वारा जो पापा जी अपना फायर प्रे करते हैं ना, मैं बोला इसको लगा के मैं सुनाऊंगा। यानी जब फायर प्रे लगा के मैं इसको सुनाता था तो बोलता था बंद करो, मेरे को तकलीफ होता है। अच्छा। मैं बोला तुमको तकलीफ नहीं होएगा, तू चंगी होएगी। और धीरे धीरे जिस तरह से ये सुनती गई, उसी तरह से इसको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लग गया। जब इसको छुटकारा मिलने लग गया तो खुद बोलता था मैं वचन सुनूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं इसके मोबाइल से प्रोफाइल निकाल के दिया। मैं बोला तू हर दिन सुन, तेरे को चंगा सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई इस धरती पे चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन वही देने वाला है। और उसके बाद आप दोनों ने लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया? हम अटेंड करना शुरू कर दिया। स्वर्गेट का जो अपना ब्रांच था अंकुल नरोला पापा जी का, उधर में गए और उधर हर एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। उसके बाद हमारे मिसेज बत्तीसवां लिए हैं, 32वां पुणे में लिए हैं। उसके बाद इसको हर एक चीज से परमेश्वर ने भर दिया है, अनभाषा से हर एक चीज से भर दिया। अभी ये रूह बचाने का काम करती है, सुसमाचार सुनाती है, जिधर जाती है उधर सुख समाचार सुनाती है। जिसके लिए प्रे करती है परमेश्वर वो प्रे सुनता है। और तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और जब इन्होंने 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो नशे की आत्मा को दूर कर रहा है। आज लोगों के अंदर से नशे का आत्मा जा रहा है, जादू टोना जा रहा है, व्यभिचार जा रहा है, खेल जा रही है। यीशु के नाम में हल्के हो जाओ, आजाद हो जाओ। और जब बहन आपने प्रार्थना को रिसीव किया
परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसके बाद परमेश्वर के दास सपने में आपके पास आए थे। तो मैं सोई थी, मैं प्रेयर की और प्रेयर करने के बाद रोई। मैं बोली प्रभु सब दुनिया ने तो मुझे ठुकराया, कोई मुझे शादी में नहीं बुलाता, कोई मुझे ब्याह में नहीं बुलाता, मैं किस हालत में पड़ी रही प्रभु, मुझे सभी ने छोड़ दिया, लेकिन तू तो महान है परमेश्वर। मैंने 2 मैरिज की, सभी 2 मैरिज वाले ने भी, ये मेरी तीसरी मैरिज है। मुझे लोग ताने देते हैं मेरे परमेश्वर, मुझे तो ऊंचा तू ही कर सकता है। मुझे अपनों ने भी छोड़ा प्रभु, परंतु सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैंने दुआ की और मैं सो गई, प्रभु का दास आया और मेरे सपने में हंसने लगा। तो मैं देखी आँख खोल के तो प्रभु का दास हंस रहा है। तो मैं बोलने लगी प्रभु के दास को कि अब आए है, प्रभु का दास आया है। तो मुझे बोल रहे उठ। तो मैं बोली प्रभु मैं उठ नहीं सकती हूँ पापा जी। तो बोल रहा है नहीं, मैं तुझे उठ खड़ा करने के लिए आया हूँ, मैं तुझे उठा के खड़ा करने के लिए आया हूँ। तो मैं बोली प्रभु मैं तो धन्य हूँ, और मुझे अपने सीने से लगाया। मेरे जीवन में इतना आनंद आया, इतनी खुशी आई कि मैं अपने आप को भी मैं हंसते रहती हूँ, मैं आनंदित रहती हूँ। जब से हर टाइम जैसे नींद से उठती हूँ परमेश्वर का वचन लगाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं पूरा प्रार्थना करती हूँ 4-4 घंटे। मैं पार्लर में जाती हूँ भाई लोग को सुसमाचार सुनाने, मैं आटा पिसाने की चक्की पे जिधर भाई लोग रहती है वहां जाती हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से ऊंची आवाज में, हालेलुया पहचा मौका करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है अपने हाथों को हिलाते हुए कहा सब जन, तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। खुदावन ने इनको एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने हर तरह के पाप से। आज भी जो लोग मुझे बोलते थे मेरे गांव वाले, उन में से मेरे परिवार में से मैं 4 लोग लेके आई हूँ महाराज से, इधर सुन रहे बैठे हैं कि कौन सा तेरा परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है। हमारे भी पति नशे करते हैं, हमारे भी बेटे नशे करते हैं, हम भी देखना चाहते करके आज भी महाराज से मेरे साथ 4 लोग लेके आई हूँ। तारीफ करें खुदावंद के नाम को महिमा दे। और आज जो भी सारी शर्मिंदगी से बाहर निकाला है, आज जितने भी लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, आज जितने भी लोग ऐसे हैं जो पागलपन के टैक्स के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, नशों के नीचे हैं, पाप के बंधनों के नीचे हैं, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, वचनों को सुनोगे, तो वो वचन आज आपकी लाइफ में डिलीवरेंस को लेके आएगा। आज उन नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो नशे के बंधन आपके परिवारों में से टूट चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज वाला हालेलुया। तू महान सामर्थी, होगे तेरा नाम यीशु, तेरा सामर्थी। हालेलुया। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम पास्टर सुरजीत मसीह है। कहाँ से आप? गुरदासपुर पिंड कहनवंत तो। आप बता रहे कि 24 नवंबर 2025 को आप कहीं जा रहे थे, हाँ जी, बाइक पर थे, तो आपका एक्सीडेंट हो गया। मैं मोटरसाइकिल ਤੇ ਜਾਂਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जब आप गिरे तो एकदम से जब आपने उठ के खड़े होने की कोशिश की तो आप खड़े नहीं हो पा रहे थे। नहीं हो पाया।
बिल्कुल पैर स्वेल हो चुका था। हाँ जी। बाइक जो थी आपकी पूरी तरह टूट चुकी थी। हाँ जी, टूट गई। फिर आपको जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां पर डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे करके बताया कि आपकी पैर की हड्डी वो टूट चुकी है। हाँ जी, मेरा डॉक्टर ने जो मेरा एक्सरे ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜਾ ਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। और फिर डॉक्टर ने आपका इलाज किया, प्लास्टर लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी। प्लास्टर लगने के बावजूद, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था। मैंने कोई आराम नहीं आया। मैं बहुत परेशान सी और जो कुछ भी मैं घर दे विच मेरे मैनू संभालने वाला ही वो मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर ही और मेरा परिवार जिहड़े मैनू संभालदे ही। और लैट्रिन बाथरूम मेरे परिवार, मेरा ब्रदर, मेरी वाइफ लैके मैनू चलदे ही। आपको फैमिली का लेना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता मैंने था। फैमिली का सहारा लेके जाना पैंदा सी। जहाँ फिर फैमिली में आपके ब्रदर आपको उठा के टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। उस समय काफी परेशानियां, दिक्कतें बढ़ चुकी थी। बहुत परेशानियां आई हैं क्योंकि मेरा कारोबार भी बंद हो गया। मैं सेवाकाई करदा, मेरी सेवाकाई भी बंद हो गई और मैं कल्ला ही कमाने वाला ही, जिहदे विच मैं घर दा खर्चा, मेरा बहुत कंडीशन माड़ी हो गई कि मैं घर दा खर्चा भी नहीं मेरा पूरा होने दिया। और आप ये सब चीजें भी अपने परिवार के लिए भी, अपने बारे में भी सोचते रहते और परेशान रहते थे। मैं 24 घंटे के सोचता रहता और रोंदा रहता कि मैं ये मेरे ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ दिन क्यों आ गए, मेरे ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ दिन किद्दां आ गए। मैं बहुत वधिया चलदा प्रभु दे नाल और मेरे नाल क्यों इदां होया। और काफी परेशान थे। पर आप पहले से ही चर्च के साथ, जहाँ A&M चर्च यानी कि अंकुर नूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी, मैं पहले से मैं इत्थे जुड़िया हुंदा। और आप फिर चर्च में आए 30 नवंबर 2025 को। जब आप चर्च में आए तो आप हीलिंग हॉल में बैठे थे। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, सिस्टम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कहे मेरे बीमार शरीर को छोड़ के जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे शरीर को, मेरे ब्लड को, सिस्टम को, मेरी हड्डियों को, मेरी लाइफ को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को अभी छोड़ के जाता रहे, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और आप जानते हैं कि जब आप हीलिंग हॉल में बैठते हैं, कहीं पर बैठते हैं, तो परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा स्पेशल प्रार्थना की गया ऑयल जो है वहां पर भेजा जाता है। और उस समय जब प्रार्थना हुई तो आपके ऊपर ऑयल भी अप्लाई किया गया। हाँ जी। और आपने जब ऑयल लगाया गया तो प्रार्थना हुई तो रिसीव किया, क्या महसूस किया था बॉडी में उस समय? मैंने गर्मी जी महसूस हुई। उस समय गर्माहट सी हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो जब उस दिन चर्च में आए तो कैसे आए थे आप? व्हील चेयर पे आए। व्हील चेयर के ऊपर। हाँ जी। ऑयल लगा, गर्माहट महसूस हुई तो आपने अपने आप को चेक किया? हाँ जी। क्या लगा अपने आप को जब आपने देखा? मैनू इदा लगा कि जिदा मैनू गर्मी जी महसूस हुई और मेरे पैर के अंदर जान आ गई है। और आप उसी समय उठ के खड़े हो गए? मैं उसी समय तो मैं उठ के खड़ा होया और मैं चलना शुरू किया। और बिल्कुल चल पा रहे थे? बिल्कुल चल पा रहा। कोई दर्द नहीं था? कोई दर्द नहीं। वो स्वेलिंग जो थी वो खत्म हो चुकी थी? हाँ जी, सारी अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी? कोई किसी दी सहारे। सब थैंक्स करें पहले तो, धन्यवाद दें ऊंची आवाज के साथ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। भाई आप चलिए, पहले आप चलिए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ये भाई डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया, प्लास्टर लगा दिया, मेडिसिन ली गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब परमेश्वर के घर में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, हीलिंग हॉल में बैठे थे, जब खुदा के दास दासी ने प्रार्थना की तो रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। उसी समय टूटी हुई हड्डी को खुदा ने जोड़ा है, बल ताकत दी है और उसी समय भाई खड़े हुए। और भाई कितने दिनों से बिल्कुल ठीक है? अब मैं 2 महीने तो बिल्कुल फ्री हूँ। बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है? किसी के सहारे की जरूरत नहीं। बिल्कुल कोई दर्द नहीं? कोई दर्द नहीं। काम करते हैं आप? हाँ जी, काम करता। अभी भी आज भी लोग ऐसे होंगे जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं, बीमार हैं,
हाँ जी। जहाँ उनके घरों की हालात कंडीशन भी ऐसी हो चुकी है, बीमारियों में रह के, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ आजाद करेगा मेरा परमेश्वर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर के वचन। याकूब 5:15 में लिखा गया था, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। ये सबूत है, अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे, झूमते नाचते हुए, खुदावंद की महिमा करते हुए। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक्स करें, धन्यवाद दें सब जन। तेरी महिमा उपस्थित है हालेलुया। तो सभी जन इस तरह से आप बैठे रहें और एक वीडियो टेस्टिमनी को आप सुनेंगे। ध्यान से इस गवाही को सुने। खुदावंद ने बड़ा काम किया इस फैमिली के जीवन में। तो सब जन उस वीडियो टेस्टिमनी को सुने पूरे ध्यान से। और गवाहियाँ आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं और आपको ये समझ आती है कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। आपने अभी गवाहियाँ सुना किस तरह परमेश्वर ने पागलपन से, दुष्ट आत्माओं से, नशों से, जो चल नहीं पाते थे उनको परमेश्वर ने हील किया। अलग अलग तरह से परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किए। तो ये वीडियो टेस्टिमनी को सुने पूरे ध्यान से और खुदावंद की महिमा करें। आज आप एक ऐसी गवाही सुनेंगे जिसको सुनने के दौरान आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 61 उसकी 7 आयत में, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में पूरा किया। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और आप विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਪ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੀਵਰ ਮੇਰਾ 101 102 ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਥਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਟੈਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। मैं प्रार्थना करता हूं उन बहनों के लिए जिनके बेबीज नहीं हैं, अपने पेट पे हाथ रखो। अब अगर आपकी वाइफ यहां नहीं, आप अपने पेट पे हाथ रख सकते हैं। अपने पेट पे हाथ रख के आप उस व्यक्ति के लिए रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के वचन में लिखा, उसने आदम हवा को कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। ये उसकी योजना है आपके लिए, जो ये कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, जो ये कहता है, जो यहोवा का डर मानते हैं, यहोवा उनको उन्हीं मार्गों पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है और उनका वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। वो तुम्हें वंश देने के लिए बुलाता है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨ ਵਰਡ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ 4th ਮੰਥ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੇਬੀ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਸ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸਕਰੀਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਬੇਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੇਫ ਆ। ਫਿਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। सारियां नूं जय मसीह दी तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। सारी दुनिया बनाने वाले ने जी मेरे नाल यारी लाने। सारी दुनिया बनाने वाले ने जी मेरे नाल यारी लानी। मैनू पित्तल तो सोना करता जी मेरे नाल प्रीत पाले। मैनू पित्तल तो सोना करता जी मेरे नाल यारी लानी। वचनां नू पढ़िया मैं रब सच्चा मिले आए। चिकड़े दे विच देखो गुलाब किवें खिले आए। वचनां नू पढ़िया मैं रब सच्चा मिले।